Are you excited to listen or perform the magical practice number 3? And it's related to relationships. Imagine if you were the only person on earth and you would have no desire to do anything. What would be the point in creating painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. So, what is the fun of living on that if no one is able to see your painting? If you are making painting, अगर आप पेंटिंग बना रहे हो तो आपकी पेंटिंग देखने के लिए कोई है ही नहीं, तो आप उस पेंटिंग का बनाने का फ़ायदा ही क्या है? और अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आप म्यूज़िक बना रहे हो, अगर उसको सुनने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है तो उस म्यूज़िक का फ़ायदा क्या है? अगर कोई आप इन्वेंशन कर रहे हो, अगर कोई है ही नहीं उसको यूज़ करने के लिए तो उसका फ़ायदा क्या होगा? It's your contact and experiences with other people that give you your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationship affect your life more than anything else. To receive life of your dreams, it is vital that you understand how your relationship affect your life now and how they are the most powerful channel for gratitude to start magically changing your life. यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आपके कॉन्टेक्ट्स और कैसे एक्सपीरियंसेस हैं आपके लोगों के साथ। अगर आपके वहाँ पे लाइफ किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं तो आपको वो खुशी देती है, उसके लिए लाइफ का आपके लिए मीनिंग हो जाता है और आप एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे हो। अगर आप अपनी फैमिली के लिए भी जी रहे हो तो आप रोज क्यों उठते हो, क्यों आप कमाई करते हो, क्यों आप हार्डवर्क करते हो, बच्चे क्यों पढ़ते हैं, उनका कुछ कुछ अगर बच्चे कंपटीशन करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? उनको कंपटीशन होता है दूसरे बच्चों के साथ। सो इससे क्या होता है, उनको एक रिलेशनशिप की फीलिंग आती है कि अच्छा रिलेशनशिप है हमारा दूसरे सबके साथ, तो हम प्रोग्रेस करेंगे। अगर कोई प्रोग्रेस कोई देखने वाला ही नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होता। सो इट इज़ अ that we have to improve our relationship with the others. Science is now confirming the wisdom of great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationship and are more connected to family and friends and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding static statistic that come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relation to flourish. Any less than 10 blessings for every relation, one complaint, and relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. So अगर हम एक कंप्लेंट करते हैं तो उसके लिए हमें 10 ब्लेसिंग्स भी देनी पड़ेंगी, 10 बार हमें ग्रैटिट्यूड फील करना पड़ेगा ताकि वो रिलेशनशिप जो हमने कंप्लेंट की है उसका हमें कोई साइड इफेक्ट ना हो। वैसे कंप्लेंट करनी ही नहीं चाहिए, और कंप्लेंट करते हैं किसी के साथ किसी रिलेशनशिप के बारे में तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि वो आपकी अगर एक कंप्लेंट करते हैं तो आपकी 10 ब्लेसिंग्स ले भी जाता है, आपकी 10 चीज़ों का नुकसान भी होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने कंप्लेंट करनी ही नहीं किसी के बारे में, तो हमने सिर्फ क्या करना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है। अगर ग्रैटिट्यूड करते हो तो ग्रैटिट्यूड की बहुत ज़्यादा पावर है। आपने सुना होगा कि अगर हम कोई भी स्पीच करते हैं कहीं गुरुद्वारा साहब में कहीं भी, तो सबसे पहले वो संगत से माफ़ी मांगते हैं, या एंड में संगत से माफ़ी मांगते कि
अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो हमें माफ़ कीजिए। सो उससे क्या होता है, उससे फॉरगिवनेस आ जाती है। फॉरगिवनेस से आपके अंदर में एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी आती है। Gratitude makes a relationship flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. अगर आप ग्रेटिट्यूड बना के रखते हो लोगों के साथ, जहाँ अंदर से आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तो आपके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे होते रहते हैं लोगों के साथ। अगर आप ग्रेटिट्यूड इंक्रीज करते हो तो आपके रिलेशनशिप भी उतने ही स्ट्रांग होते जाते हैं। ओके, सो इससे क्या होता है, आपको हैप्पीनेस आती है, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस आती है, और आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ग्रेटिट्यूड फॉर योर रिलेशनशिप डज नॉट चेंज ओनली योर रिलेशनशिप, इट ऑल्सो चेंजेस यू, नो मैटर वट योर temperament is now. Gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. ग्रैटिट्यूड से ये नहीं कि दूसरा ही चेंज होगा, ग्रैटिट्यूड से हमारे अंदर भी बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं। सो हम भी बहुत पेशेंस में आ जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हम कंपैशन में आते हैं, हमारे अंदर काइंडनेस आ जाती है। सो ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं अगर हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। The little irritation you once felt and complaints you have had in your relationship will disappear, because when you are truly grateful for any another person, there is nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them, because you are too busy being grateful for good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. सो अगर हम किसी के बारे में अगर हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, अगर हम ग्रेटफुल रहते हैं हर चीज़ के लिए, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो क्या होता है, इससे हमारे हम किसी में नेगेटिव फाइंड ही नहीं कर पाते, हम कंप्लेन कर ही नहीं पाते किसी के बारे में, हम किसी को ब्लेम करते ही नहीं, हमारे पास ही टाइम ही नहीं होता कि हम किसी को कंप्लेन करें। तो हम हमेशा किस में रहेंगे, हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। तो ग्रेटिट्यूड हैज़ पावर इंस्टेड ऑफ कंप्लेंट्स। कंप्लेंट से हमारी पावर कम होती है। वी कैन ओनली बी said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Words are very powerful, so when you complain about any person, you actually harm your life. It's your life that will suffer. अगर हम किसी की कंप्लेंट करते हैं, हम किसी के बारे में कंप्लेंट करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने गलत किया, चाहे उसने किया भी हो, पर आपने कंप्लेंट नहीं करनी, क्योंकि ये क्या करता है, ये आप ही को हार्म करता है। अगर हम किसी के बारे में, अगर मैं किसी की कंप्लेंट कर रही हूँ तो वो मेरे को ही नुकसान देगा। सो इससे बेटर है कि हम कंप्लेंट ना करें। सो ये हमारी ही लाइफ को इफेक्ट करता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी हमें ही मिलती है। अगर हम किसी के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव वाइज जो हमारे अंदर ही हो जाती हैं, हमारे अंदर ही स्प्रेड करती हैं, तो हमें ही बीमार करती हैं, हमें ही और प्रॉब्लम से फंसा के रखती हैं। By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. अगर हम किसी की कंप्लेंट करते हैं तो वो वापस हमारे पास ही आती है, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। Whatever we will give, same we will get. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? Okay, हमें क्या सिखाया गया है स्कूल में भी, बच्चों को क्या सिखाते हैं कि जब टीचर पढ़ा के जाता है तो क्या बोलना, थैंक यू। तो बच्चे तो नॉर्मली थैंक यू कह देते हैं। अगर वही चीज़ वो दिल से कहें कि हाँ, दिल से फील करें कि टीचर ने पढ़ाया, टीचर क्लास में आया, उसने हार्ड वर्क किया है, तो दिल से अगर थैंक यू करेंगे तो क्लास का माहौल भी अच्छा हो जाएगा और उसका बच्चों को भी बेनिफिट होगा। तो जैसे हमें बड़े बड़े टीचर्स ने सिखाया कि हमें कंप्लेंट नहीं करनी। अगर कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट की जगह हम ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, सो हमारी पावर इंक्रीज होती है, हम मैजिकली वही चीज़ें अट्रैक्ट करनी शुरू कर देते हैं जो हम देते हैं। Today magical practice is being grateful for people just as they are. So today we have to be grateful for people as they are.
जैसे हैं वैसे ही हमने उनका ग्रेटिट्यूड करना है। हमने कोई उनको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी। हम अपने आप से ग्रेटिट्यूड फील करें इंस्टेड ऑफ कंप्लेंट। सो इससे हमें क्या होगा, हमारा अपना ही सुधार होगा। Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform in breathtaking magic, and your relationship will be stronger or more fulfilling and or more enriching than you ever thought they could be. सो इससे क्या होगा, अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो जो रिश्ते बिगड़े वो तो ठीक होंगे ही होंगे। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे भी हैं तो उससे क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप्स और भी बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि हम अंदर से ही पॉजिटिव हैं। हम अपने आप में किसी के बारे में कंप्लेंट नहीं कर रहे, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे। अगर हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे तो हम अंदर से पॉजिटिव हैं, तो हमारे रिलेशनशिप दूसरों के साथ बढ़िया हो जाएंगे, और जिसके साथ बढ़िया उसके साथ बहुत बढ़िया हो जाएंगे। Okay, choose 3 of your closest relationship to be grateful for. So today's practice is this, that you have to select 3 relationship जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहते हो. यू माइट चूज योर वाइफ, योर सन, योर फादर, योर बॉयफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, योर बिजनेस पार्टनर एंड योर सिस्टर. तो आप कोई भी रिलेशन ले सकते हो, चाहे वो वाइफ है, चाहे आपका बेटा है, बेटी है, चाहे आपके पापा है, कोई भी पार्टनर है आपका, जो सिस्टर है. आप कोई भी 3 रिलेशनशिप सिलेक्ट कर सकते हैं. यू माइट चूज योर बेस्ट फ्रेंड, योर ग्रैंड मदर और योर अंकल. कोई आप अपना बेस्ट फ्रेंड को चुन सकते हो, अपने अंकल को चुन सकते हो, अपने दादी को, दादे को. ओके, किसी को भी आप चुन सकते हो. उनसे कोई भी 3 रिलेशनशिप आप सिलेक्ट कर सकते हो. सो आज की हमने प्रैक्टिस क्या करनी है, हमने 3 रिलेशनशिप सिलेक्ट करने हैं. ओके, सो यू कैन चूज एनी 3 रिलेशनशिप दैट are important to you as long as you have a photograph of each person. अगर आपके पास हर एक बंदे की फोटोग्राफ है, द फोटोग्राफ कैन बी जस्ट ऑफ द पर्सन और बोथ ऑफ यू टुगेदर. तो फोटोग्राफ उसकी वो आपके पास जहाँ आपकी उसके साथ फोटो हो, जहाँ अकेले की फोटो, आप उसकी फोटो ले सकते हैं. आपने 3 बंदों की फोटो लेनी है जिनके साथ आप रिलेशन सुधारना चाहते हैं. वंस यू हैव सिलेक्टेड योर 3 रिलेशनशिप्स एंड फोटोग्राफ्स, you are ready to set the magic into motion. अगर आपने वो 3 रिलेशनशिप सिलेक्ट कर ली जिसके साथ आप रिलेशन इंप्रूव करने चाहते हो, आपने उनकी फोटो ले ली, आप रेडी हो गए मैजिक करने के लिए. सो सिट डाउन एंड थिंक अबाउट द थिंग्स यू आर द मोस्ट ग्रेटफुल फॉर अबाउट ईच पर्सन. आपने बैठना है बड़े आराम से और सोचना है हर एक बंदे के बारे में, कि आप पहले एक बंदे को ले लो कि आप कौन सी उसके बारे में ऐसी चीज़ें जो आप उसमें बहुत ज़्यादा जिसके लिए ग्रेटफुल हो. व्हाट आर थिंग्स यू लव अबाउट दिस पर्सन. आप देखना है आपने कि किस चीज़ के लिए आप उस बंदे का शुक्रिया करना चाहते हो. जो अपने पर्सन के साथ रिलेशन इम्प्रूव करना चाह रहे हो, आपने देखना है कि उसके साथ कौन सा क्या आपके किस चीज़ के लिए आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, और कौन सी चीज़ें जो उसके अंदर जो आप सबसे ज़्यादा उसके लिए आप उसको प्यार करते हो, कौन सी उसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं. व्हाट आर देयर बेस्ट क्वालिटीज़. यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर देयर पेशेंस. आप उसकी पेशेंस के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो. आप उसकी लिसनिंग की एबिलिटी के बारे में हो सकते हो ग्रेटफुल, उसके टैलेंट के बारे में, उसके स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी जजमेंट, गुड जजमेंट के बारे में, उसकी विजडम के बारे में, उसकी हंसी के बारे में, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, आइज, स्माइल और काइंड हार्ट. किसी भी चीज़ के बारे में आप उसके लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकते हो, उसको प्यार कर सकते हो, उसके आई लव यू कह सकते हो उसको. ओके, सो यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू इंजॉय डूइंग विद द पर्सन. आप वो चीज़ें ग्रेटफुल हो सकते हो जो आपने उस बंदे के साथ इंजॉय की. और यू कैन रिकॉल ए टाइम व्हेन द पर्सन वाज देयर फॉर यू. आप उस चीज़ के लिए याद कर सकते हो जब बंदा आपके लिए वहाँ पे था, आपके लिए उसने केयर फॉर यू, सपोर्टेड यू. आपको उसने कैसे उसकी केयर की, आपकी उसने केयर की, आपको कहाँ उसने सपोर्ट किया. आप उन चीज़ों को याद करके ग्रेटफुल हो सकते हो.
After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and a notebook or on a computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic word thank you. Address the person by the name and then write what you are grateful for. सो आपने क्या कर लिया, जब आपने 3 बंदे सेलेक्ट किए, आपने उसकी अच्छी चीज़ें देख ली, इसके बारे में आप उसको बहुत आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, आप उसकी यादें याद कर ली, कभी आपकी उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जब आप किस बात के लिए उससे आप ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपने जब अच्छी चीज़ें सोच ली उसके बारे में, तो आपने क्या करना है, उसकी फ़ोटो को अपने सामने रखना। आपकी फ़ोटो उसके साथ हो या अकेले की उसकी फ़ोटो आपके सामने हो। फिर आपने एक पेन ले लेना है, जहाँ पेन और नोटबुक ले लिया, जहाँ आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है जो भी है, वो उसके उसमें आपने 5 थिंग्स लिख लेनी है उसके बारे में, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा उस बंदे के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हो। लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द पर्सन एज यू मेक योर लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स। आपने साथ के साथ उस फोटो को देखते रहना है जब वो 5 चीज़ें उस बंदे के बारे में लिख रहे हो। सो आपने हर एक सेंटेंस को थैंक यू वर्ड से शुरू करना है, जो कि मैजिक वर्ड है थैंक यू। सो फिर उसके बाद उसका नाम लिखना है, फिर उसके लिए लिखना है कि किस चीज़ के लिए आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। ओके, पहले थैंक यू, फिर उसका नाम, फिर लिखना है कि आप किस चीज़ के लिए उसके लिए शुक्र गुजार हो। तो जैसे किसी का नाम है जॉन, थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ। ओके, जैसे आप किसके लिए शुक्रगुजार हो, क्योंकि वो आपको खुशी देता है। थैंक यू मॉम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू कॉलेज। ओके, सो ऐसे आप लिख सकते हो। व्हेन यू आर फिनिश योर लिस्ट ऑफ ऑल 3 पीपल, कंटिन्यू विद दिस मैजिकल practice by taking the photograph with you today and putting them in a place where you will see them often. Wherever you look at the photograph today, thank the person by saying the magic word thank you, the person name. Okay, तो आपने उसका थैंक यू कर लिया, लिख लिए सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस लिख लिए उसके बारे में, हर एक बंदे के बारे में, क्योंकि आपने 3 रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करने हैं। तो आपने क्या करना है, उसकी फ़ोटोग्राफ अपने सामने रखनी है कहीं भी जहाँ पे आप बार बार उसको देख पाओ। तो जब भी आप देखो तो उसको क्या बोलना है आपने, थैंक यू बाय टेकिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, थैंक यू जोहन। ओके, जब भी देखो आपने यही बोलना है उसको। इफ़ यू आर मूविंग अराउंड ए लॉट, कैरी द फोटोग्राफ विद यू इन योर बैग और पॉकेट। Make an effort to look at the photograph 3 times during the day, following the same procedure. अगर आप कहीं ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो तो आपने उस बंदे की फ़ोटोग्राफ अपने बैग में डाल लेनी है या जेब में डाल लेनी कहीं पे। तो 3 टाइम्स एटलीस्ट आपने उसकी फ़ोटो देख के सेम वे आपने थैंक यू बोलना है उस बंदे का। Okay, now you know how to use gratitude magical power to transform your relationship into magical relationship. So अब आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे हम ग्रेटिट्यूड करके, ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर यूज़ करके हम मैजिकल रिलेशनशिप्स कैसे बना सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many as time you want. The more you can be grateful for the good things in your relationship, faster every relationship in your life will miraculously change. So आपने क्या करना है, आपने हो सकता है आप रोज ही कर, अगर रोज कर पाओ तो रोज ही करो। अगर आपने एक बंदे के लिए रिलेशनशिप आपका जो 3 बंदे सेलेक्ट किए, आप चाहते हो कि उन्हीं के लिए आपने करना, तो आप रेगुलरली उनके लिए रोज सेम प्रैक्टिस आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहते हो, मान लो आपका रिलेशनशिप बढ़िया हो गया एक के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप न्यू फोटोग्राफ्स लेके न्यू रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव कर सकते हो। सो इससे आपके रिलेशनशिप्स बढ़िया हो जाएंगे। सो आज की आपकी मैजिकल रिलेशनशिप की डे 3 की प्रैक्टिस क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने वही ग्रेटिट्यूड फील करना है जो डे 1 की प्रैक्टिस थी। 10 थिंग्स ले लेनी है, 10 ब्लेसिंग जो आपको आपके पास है। सो आपने लिखने की वाई आर यू ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स। ओके, सो पहले आपने रिपीट स्टेप्स 1 to 3 ऑफ मैजिक practice number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list and
at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel grateful, as grateful for the blessing as you can. ओके, फर्स्ट आपने वही रिपीट करना है कि आपने जो 10 थिंग्स लेनी है, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, तो उसके बाद आपने उनको लिख लेना है कि क्यों ग्रेटफुल हो, फिर ये लिखना है आपने, फिर उसको रीड करना है, रीड करने के साथ आपने हर एक सेंटेंस के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। फिर आपके सेकेंड स्टेप पे आपने 3 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स लेनी है, उनकी फ़ोटो कलेक्ट करनी है हर एक पर्सन की। सो आपने हर एक फ़ोटो के सामने आप फ़ोटो अपने पास रखनी है, तो आपने 5 थिंग्स लिखनी है उस बंदे के बारे में जो आपको आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो। सो हर एक सेंटेंस को आपने थैंक यू के साथ ही स्टार्ट करना है। सो आपने उसका फिर नाम लिखना है, फिर लिखना है कि आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो। ओके, सो अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसकी फ़ोटो अपने साथ लेके जाओ, जहाँ आप मोबाइल में डाल सकते हो उसका थैंक यू, जब भी आपको पता दिन में ज़्यादा है तो आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल सकते हो उसके बारे में। ओके, सो 3 times तो minimum you have to do. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand, say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. So सोने से पहले अपने मैजिक रॉक को अपने पास रखना है, तो आपने जो भी दिन में सबसे बढ़िया बात हुई आपके लिए, आपने उसका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना। ओके, so this was a practice related to day 3 and it was related to improving of relationships. Hope you will enjoy this magical relationship day 3 practice. If you like, please like this video, put like and share this video to others, and please comment also if you need any help. So thank you for watching this video and liking this video. I'm so grateful to all those who are watching and putting like to this and sending to others to improve the relationships of others. Thank you, and thank you.